everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है द फर्स्ट यूरोपियन फीमेल हु टेस्टेड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बेटर देन यूरोप, कैरोलिना गोस्वामी। और इनके चैनल का भी आई थिंक यही नाम होगा। नहीं, इनके चैनल का नेम है इंडिया इन डिटेल्स। अच्छा, जब टेस्टेड आया ना, मुझे था शायद कुछ स्ट्रीट फूड टेस्ट किया है इन्होंने। तो खैर, इस वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके इसको फॉलो करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब उस एंड पे लिखा हुआ है बेटर देन यूरोप। So the wait is over, and the first phase of the Delhi-Mumbai Expressway is officially open for commuters. Of course, in pictures, the Delhi-Mumbai Expressway appeared grey. But how about the reality? Also, another question that many ask is if the Indian highways are now better than the highways in Europe or the USA. To start with, I should tell you that I have been on many road trips in different parts of the world, including Europe, the USA, and of course, the recent 20,000 kilometer long road trip around India. I've been to almost all the major highways and expressways of India, but this particular expressway, the Delhi-Mumbai Expressway, is special for Indians for many reasons. And one of them is that it connects to two mega cities of India, the capital and the financial capital. So in India, there is a strange-looking experiment that many prefer to do to test the ride quality on a highway. Not so long ago, this experiment was done on India's Vande Bharat train at a speed of 180 kilometers per hour. So many in India praised the stability that the glass filled with water showed. So similar experiments were done on a European highway and on the Delhi-Mumbai Expressway. Of course, I was super excited because I really wanted to drive on this amazing expressway in India, and what I experienced is something that I would like to share with you in this video. Of course, when it comes to highways or expressways, there are many things that India is already doing better than many European countries. Obviously, I noticed some of them, and I will share all those points with you too. But first, let's see the result of this so-called glass filled with water experiment. So that's the European highway where the experiment was conducted. Please pay close attention. See the movement of the water in the glass. See how stable or unstable it is. Now, I must tell you that a highway like that is considered very good in Europe, and people really enjoy driving on such roads. Now, let's see what happened on the Delhi-Mumbai Expressway. There you go. Pay close attention. See the movement? Do you notice the difference? Maybe not. So what we will do now is, wait. Let's put both sets of footage next to each other. Now watch it for a few more seconds. Do you see the difference? So before I tell you what I think about the result of this experiment, I want to share some very important points about these expressways in India that I think many in Europe can learn or take some inspiration from. Point 1. The speed of construction. The speed at which the expressways like these are being constructed in India is quite impressive for many. When it comes to highways like these, there are many places in Europe where the speed of construction is terribly slow. That's very frustrating. Point 2. The digital toll payment system. I've been traveling all around India and almost everywhere. The toll is paid by FASTags, and that is super convenient. To start something like this on such a massive scale in a big country like India is very impressive. There are still many major highways in Europe where mainly the toll is still being collected in a manual way. Point 3. Affordability. Yes, there are roads in Europe where no toll is charged, but then when it is charged, it can be very expensive in comparison to what you are charged in India. If you love driving, you pay very little in India to have this world-class experience. Point 4. Facilities like the play area and the open gym. Now, this particular feature on the Delhi-Mumbai Expressway impressed me. The play area was huge. There was even an open gym. Especially those who drive trucks or buses for many hours, this can be very good for them. There are many highways in Europe where there is nothing like this. But then the driving discipline, the quality of toilets, and the overall attention to detail can be improved on the Delhi-Mumbai Expressway. This is what I felt. And as far as this experiment is concerned, I must tell you that we have not yet explored whether this experiment has any scientific credentials or not. Also, we have not yet explored whether this experiment is scientifically valid or not. It is just a popular practice in India, and many do it to compare the ride quality on highways or even on trains. But perhaps even a high school student would understand right away that the type of car, the suspension, the speed, the driver would all make a difference in the outcome.
Regardless, some viewers always demanded, so we arranged it. I was told that I was the first European female to drive and test this expressway in India, and if that is indeed true, I am happy to be part of this history. See you again. सही बात है भाई, अगर इसका ये टेस्ट सही हुआ तो वाकई ये हिस्ट्री में ही लिखा जाएगा कि एक फर्स्ट यूरोपियन लेडी थी जिसने ये टेस्ट किया है। और जब अपने टाइटल जैसे हमने पहले पढ़ा तो मुझे तभी बहुत ज्यादा हैरानगी हुई थी कि यूरोपियन रोड से जो बेटर है वो इंडिया की ये एक्सप्रेस वे, और वाकई जो एक्सपेरिमेंट कितना मजे का उन्होंने किया है ना, दोनों का गिलास चेक किया और वाकई में जो जिस रोड पे इन्होंने अभी टेस्ट किया वो बिल्कुल भी पानी जो है वो हिल नहीं रहा था, और यूरोप वाले जो रोड थे वो थोड़ा बहुत भी हिल रहा था। हालांकि वो बेस्ट उनकी एक्सप्रेस वे थी यूरोप की। और बड़ी अच्छी इसमें थी बात के जैसे ओपन जिम था या प्ले एरिया वगैरह था, जैसे वो कहते हैं ये जो भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं ट्रक वगैरह के जो ड्राइवर होते हैं तो उनके लिए बड़ा इजी था कि अगर आप थोड़ा थक गए हो तो आप उधर रेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। तो जो टोल प्लाजा था वो बहुत अच्छा था, वो डिजिटल था, खुद ही पेमेंट हो रही थी। और दूसरा ये कि बहुत ही मतलब ये पहले हमने इस पे रिएक्शन किया हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, लॉन्गेस्ट ये एक्सप्रेस किलोमीटर, हाँ लॉन्गेस्ट इंडिया की, एशिया की आई थिंक लॉन्गेस्ट थी। जब हमने रिएक्शन किया था तो बहुत जबरदस्त ये थी, वो वीडियो देख के भी हमें बहुत अच्छा लगा था। और अभी लेकिन उसका ये हाँ उसमें हमें ये पता नहीं था कि इसका मतलब ये चलना शुरू हो गई है, लेकिन फिर उसके कमेंट्स में हमें सबने बताया था कि ये चलना शुरू हो गई है, इसका इफ्तिताह भी हो गया, चलना भी शुरू हो गई है। तो खैर इन्होंने ये फर्स्ट लेडी है भाई, इन्होंने कहा कि भाई मौका अच्छा जाए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना इन लेडी की, मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जब तक इन्होंने पीछे से बच्चे अपने नहीं दिखाए थे, मुझे नहीं लग रहा था कि इनके बच्चे भी हैं, लेकिन इतनी माशाल्लाह इनकी बड़ी बेटी थी और छोटा शायद बेटा था, 2 इनके बच्चे थे, लेकिन बिल्कुल यंग छोटी सी एज की लग रही थी। और मुझे देख के लग रहा था यार यूरोप में इतनी छोटी छोटी एज की शादी हो जाती है, एशिया में तो होता है इस तरह, यूरोप में भी ऐसा होता है, मुझे आज पहली बार पता चला। ये शायद वो लोग फिट होते हैं, लगता नहीं है उनको देख के। बट अगर हम रोड की बात करें तो नीट एंड क्लीन थी और टेस्ट क्वालिटी तो उन्होंने पहले बता दिया कि बहुत जबरदस्त किस्म की है। और बीच में एक वो टनल भी था ना, बीच में एक टनल, हाँ टनल भी बनाया हुआ था। और बड़ी बात है कि जो लोग मुंबई से दिल्ली के बीच में है ना, अगर आप सफर करना चाहते हो, मुझे लगता है कि अभी एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं वैसे मालूम कि मुंबई से दिल्ली का कितना बाय रोड जो है वो कितना डिस्टेंस है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 8 आवर्स का होगा तो इस रोड पे अगर आप एक्सप्रेस पे 4 आवर्स का हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है ये कि आपका सफर जो है वो हाफ हो जाता है और आप जल्द से जल्द जो है वो बाय रोड जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी जो है वो पहुंच जाते हैं। सीरियसली ये बात जो है ना, जो व्लॉगर से बेहतर ये बात नहीं कोई भी समझ सकता, क्योंकि मतलब हम लोग अगर कभी हमारा भी व्लॉग का चैनल, अगर कभी हम ट्रैवल करते हैं तो कहीं पे व्लॉग मतलब गाड़ी में शूट करना हो तो मतलब बाकायदा हिल रहा होता है, दिल्ली करता है यार इधर क्या बनाए, रोड्स इस टाइप की होती हैं। तो वाकई ये भी मुझे लग रहा है कि इनका भी कोई व्लॉगिंग का चैनल, इनका ये व्लॉग्स बनाती है, इस वजह से ये ज्यादा बेटर इनको ये एक्सपीरियंस। और ये बहुत मतलब ये अगर रोड बिल्कुल प्लेन होंगी, और इसमें क्या है आर्किटेक्चर है ना, उनके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रोड बना रहे हैं या किस कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। और खासतौर पे जब आप बच्चों के साथ हो ना, जैसे इनके साथ बच्चे थे, मतलब अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी बड़ी मुश्किल से पी पाते हो क्योंकि गाड़ी इतना हिलती है कि यार कहीं ऊपर गिर ना जाए या वो ना जाए। जब इस तरह की इतनी मजे की रोड हो, बिल्कुल स्मूथ रोड है, तो फिर आपका वाकई सफर करने का भी दिल करता है और खाने पीने का मजे से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओ, रास्ते में इतनी चीजों को एंजॉय करते हुए। अगर आपका जिम रह गया, जो लोग बहुत बाकायदगी से जिम करते हैं उनका एक दिन भी मिस हो जाए तो उनको नींद नहीं आती और उनका जो उनका फिजिक होती है ना वो अपसेट होती है। तो मतलब आप रास्ते में रुक के आधे पौने घंटे के लिए, वो यार जो डेली जिम करते हैं ना वो 10-15 मिनट के लिए निकाल लेना, उनको सुकून मिल जाता है, तो आप आराम से वो नशा जो है ना वो पूरा हो जाता है। अच्छा, मैंने रास्ते में बहुत सारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में मैंने देखे हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं लॉन्ग टूर पे, आप लॉन्ग रूट पे निकलो ना रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, लेकिन जिम का जो है ना मैंने पहली दफा देखा कि जिम भी है कि आप अपना फिटनेस का पूरा ख्याल रखें। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी रास्ते में काफी कुछ, अभी तो ज़ाहिर ये नहीं बनी है ना, तो ये काफी कुछ जैसे कि उन्होंने बोला कि बन सकता है, तो ये जरूर बनाना चाहिए क्योंकि अभी तो ये इतना चलना नहीं शुरू हुई होगी, लेकिन ज़ाहिर जब चलेगी तो लोग इसको ज्यादा यूज करेंगे। और दूसरा ये कि बहुत अच्छी बात है, दोनों ही कैपिटल, एक फाइनेंशियल कैपिटल है, एक वैसे ही कैपिटल है उसका इंडिया का,
तो इन दोनों सिटीज को, 2 मेन सिटीज को जोड़ने के लिए, और इतनी अगर ये बहुत लंबी बनाएगी तो मुझे लग रहा है कि इनका डिस्टेंस काफी होगा दोनों सिटीज का, बहुत। हाँ, और इधर मुझे लगता है स्पीड 140 से कम की नहीं होगी, है ना। 140 से स्पीड आप कम की नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने 1-2 व्लॉग देखे हैं दुबई वालों के, मतलब उनका अगर दुबई से अबू धाबी जाना हो ना, या किसी और सिटी, मतलब ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस सिटीज पे जाना हो, तो उनकी 140 से कम स्पीड नहीं होती। अगर 140 से कम हो तो आपको चार्ज हो जाता है। तो मुझे लग रहा है इधर भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ रोड है और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, तो 140 या 160 से कम इधर स्पीड नहीं होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूंगी। जैसे ये टूल प्लाजा है, तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो टूल प्लाजा, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद टूल प्लाजा आता है, जब हम लंबे किसी उस पे एक सिटी से दूसरे सिटी पे जाते हैं, तो उसको फिर उन चीजों को जो है ना सही वक्त पे उनको यूज करना, जिस काम के लिए लिया जा रहा है ना, हाँ। उनको यूज भी करना चाहिए, जैसा कि मोदी जी कर रहे हैं। अब ये अगर टोल वगैरह ले रहे हैं ना, तो उनकी वो नजर आता है कि भाई उसको यूज भी कर रहे हैं। जैसे ये एक्सप्रेस वे बनाई गई, या और भी इस तरह की बहुत सारी हाईवेज और एक्सप्रेस वे बनी है वहां पे इंडिया में, तो इन चीजों को भी यूटिलाइज भी करना चाहिए। अगर आप आवाम से ले रहे हो ना, तो एक टाइप का आपका टैक्स है ना, रोड का टैक्स, रोड का टैक्स पे कर रहे हो, तो अगर आप रोड का, आवाम जो है आपको रोड का टैक्स दे रही है, तो उसको वो सहूलत भी दो ना। और अभी टूल प्लाजा से मुझे एक और बात याद है, जैसे वो कह रही थी कि यूरोप में जो है वो टूल प्लाजा एक्सपेंसिव है इंडिया के निस्बत। इंडिया का जो टूल प्लाजा के चार्जेस है वो कम है यूरोप के निस्बत। तो अगर आपने चार्जेस भी कम रखे हुए हैं, तो फिर आप वो सहूलत, लोग फिर पे भी करते हैं खुशी खुशी। अगर आप उनको आप इस किस्म की सहूलत दो, इतने मजे के रोड हो, तो फिर लोग भी ऐसी चीजें खुशी खुशी जो है वो टैक्स भी पे करते हैं। तो खैर, ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो। बहुत अच्छा लगा इनके जान के कि इनको भी, यूरोप की लड़कियों को भी, भाई यूरोप की जो फर्स्ट लेडी हैं वो, उन्होंने आकर यहाँ पर टेस्ट किया और उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा है कि यूरोप को इंडिया से सीखना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से एक मेन और बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो खैर, आप लोग भी कमेंट में बताना अगर आप लोगों ने कभी इस रोड के ऊपर, अब तो खैर स्टार्ट हो गया है, अगर आप लोगों ने सफर किया तो हमारे साथ लाजमी शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।